پالوس رسول کا خط عبرانیوں کے نام، اس کا 12واں باب اور اس کی دوسری آیت پہ ہم غور کریں گے۔ پالوس رسول کا خط عبرانیوں کے نام، اس کا 12واں باب اور اس کی دوسری آیت پہ ہم غور کریں گے۔ لکھا ہوا ہے، اگر کسی نے نکال لیا تو پڑھنے میں رہنمائی کرے۔ اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہے، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائنی طرف جا بیٹھا۔ آمین۔ خدا نے اس کلام کے وسیلہ سے ہم تمام کو خدا بڑی برکت بخشے۔ اب 12ویں باب کی دوسری آیت میں، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہے۔ آج کے کلام کا موضوع ہے فوکس آن جیسس۔ یسوع کو دیکھنا، یسوع پہ توجہ کرنا، یسوع کی توجہ حاصل کرنا، یسوع کی طرف رجوع لانا، یسوع کی طرف دھیان کرنا، یسوع کو دیکھنا۔ اب جو ہمیں اس بات کا اعادہ ملتا ہے، جو ہمیں خدا سکھانا چاہتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے، ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا ایک ہی ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ یسوع مسیح۔ اور اسی کو دیکھنا ہے، اور اس کے نیچے ایک ہیڈنگ ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں فوکس آن یور گول، اپنے مقصد کی طرف دھیان کرنا۔ جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ اپنی زندگی میں ایک مقصد رکھتے ہیں، آپ کی زندگی میں خدا آپ کے اس مقصد میں کامیابی آپ کو دینا چاہتا ہے، تو یہ کامیابی اس وقت ملے گی جب ہم فوکس کریں گے کس پر؟ یسوع مسیح پر دھیان کریں گے، تکیں گے، غور کریں گے، توجہ کریں گے یسوع مسیح کی طرف، تو ہم اس مقصد کو ہم پالیں گے۔ ہماری زندگی کا مقصد اب شروع ہوا ہے۔ آپ نے یقیناً 31 کی رات کو گھروں میں دعا کی ہوگی اور آپ نے خدا کے آگے مقصد رکھا ہوگا۔ کوئی نہ کوئی مقصد آپ نے ضرور رکھا ہے اس سال کے لیے کہ خدا اس سال میں مجھے یہ چیز یہ کام ہو جائے۔ لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یسوع کی طرف دیکھنا ضروری ہے۔ یسوع کے بغیر وہ مقصد حل نہیں ہوگا۔ ہم ہاتھ پاؤں ماریں گے، شاید روپے پیسے بھی خرچ کر لیں گے، شاید ہم کوئی نہ کوئی ذریعہ بھی استعمال کر لیں گے، لیکن وہ مقصد وہ پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ محنتیں لگ جاتی ہے، زور لگ جاتا ہے، ہم بہت سارے جو ذرائع وسائل استعمال کرتے ہیں، لیکن جس مقصد میں یسوع نہیں ہے، جس کام میں یسوع نہیں ہے، وہ کام جلدی نہیں ہوتا۔ اگر دفتروں میں چلے جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کام جلدی ہو، تو جب تک بابا نہ لگائیں، ٹوپی والا بابا نہ لگائیں، تو تب تک وہ آپ کا کام جلدی نہیں ہوگا۔ یعنی پیسے نہ لگائیں تو کام نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ تو دنیاوی ایک مثال میں نے دی ہے، لیکن یسوع مسیح کو رشوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یسوع مسیح آپ کا دل چاہتا ہے، یسوع مسیح آپ کی روح بدن جان چاہتا ہے، یسوع آپ کا وقت چاہتا ہے، تاکہ آپ کے اس مقصد کو جو آپ نے خدا کے آگے رکھا ہے وہ پورا کر سکے۔ ہاللیلویا۔ خدا یسوع آپ کی اس مقصد میں آپ کو کامیابی میں ہمکنار کرنا، آپ کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، کامیاب دینا چاہتا ہے وہ آپ کو، اور اس لیے اس میں ضروری ہے کہ آپ کا دھیان یسوع کی طرف ہے۔
योर आई शुड बी ऑन जीसस। यीशु मसीह पर आपकी निगाहें होनी चाहिए, किसी इंसान पर नहीं। अब यिर्मयाह के किताब में लिखा हुआ है, मलाउन है वो शख्स जो इंसान को अपना जोरे बाजू बनाता है और उस पर तवक्कुल करता है। तो हमने इंसान को जोरे बाजू नहीं बनाना, उस पर तवक्कुल नहीं करना। तवक्कुल करना है तो खुदा के बेटे यीशु मसीह पर। हालेलुया। वो हमें हमारा जोरे बाजू है, वो हमारा तवक्कुल। लिखा हुआ है ईमान के कामिल करने वाले बानी। तो कामिल करने वाला बानी जो है, जिस पर हम तवक्कुल करते हैं, ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, वही हमारे मकसद को वो पूरा करता है। हालेलुया। तो इस लिहाज से अगर आपने उस गोल को, डबल ब्लेसिंग को हासिल करना है 2020 में, 2022 में, अगर आपने उस मकसद को हासिल करना है, तो आज दूसरा दिन है। आगे और 363 दिन अभी बाकी है। तो इन 363 दिनों में आपने अपना फोकस जो है वो यीशु मसीह पर लगाना है। हालेलुया। तो जब आप अपना फोकस, अपना ध्यान, अपनी तवज्जो यीशु पर लगाएंगे, ध्यान करेंगे, तकते रहेंगे उसको, तो आपको किसी भी तरह से महरूमी, नाकामी का सामना नहीं करने पड़ेगा, बल्कि आपको खुदा बरकत पर बरकत देता जाए। हालेलुया। आइए एक और हवाला देखते हैं। देखिए मेरे साथ, पौलुस रसूल का खत है फिलिपियों के नाम, उसका 3रा बाब है। पौलुस रसूल का खत फिलिपियों के नाम, उसका 3रा बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत में लिखा हुआ है, ऐ भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ और निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं, ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। अब यहां पर पौलुस रसूल, उसका ध्यान किधर है? उस इनाम की तरफ है। कहता है कि मैं वो निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं ताकि उस इनाम को हासिल करूं, उस रास्तबाजी को हासिल करूं, उस जिंदगी के चश्मे को हासिल करूं, जिंदगी के ताज को ले सकूं। उसका गोल ये है, कोई दुनियावी चीज नहीं है, रूहानी चीज है, रास्तबाजी है, जिंदगी का ताज है, जिंदगी की रोटी है, जिंदगी के पानी को वो देख लेना चाहता है और उसकी तरफ दौड़ा चला जाता है। उसका फोकस यीशु मसीह है, लेकिन उसने मकसद सामने रखा है, और वो मकसद है कि मैंने उस निशान की तरफ दौड़े चले जाना है जो मुझे दरपेश है। इब्रानियों के 12वें बाब की उसकी पहली आयत के आखिरी हिस्से में लिखा हुआ है कि जो मुझे दौड़ दरपेश है, जो दरपेश है उसे दौड़, उस दौड़ में वो दौड़ रहा है। और इधर भी वो कह रहा है कि उस निशान की तरफ दौड़ा चला जाता हूं, जिंदगी के ताज की तरफ दौड़ा चला जाता हूं। अब दुनियावी चीजें, मत्ती 6 बाब में आखिरी आयत में लिखा हुआ है कि पहले तुम उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाही की तलाश करो तो ये सारी चीजें तुम्हें अना में मिल जाएंगी। तो इसका मतलब है कि हमें उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तरफ फोकस करना है, ध्यान करना है, ताकि हम हासिल कर सके, ताकि हमें मिल सके, हमें डबल ब्लेसिंग मिल सके। तो डबल ब्लेसिंग लेने के लिए उस दौड़ में दौड़ना जरूरी है। दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, पौलुस रसूल करंथियों के खत में कहते हैं दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, लेकिन जीतता एक ही है। फोकस, दौड़ने वाले का फोकस क्या है? वो निशान जो है, उस 100 मीटर के निशान पर मैंने वहां पर पहुंचना है, यानी जितना भी उसको दौड़नी है, उसने उस फोकस को सामने रखा हुआ है। तो उस दौड़ में जब दौड़ेंगे
उस फोकस को सामने, उस मकसद को सामने रखेंगे तो वो मकसद आपकी जिंदगी में कामयाबी आपको मिल जाएगी। तो बादशाही को हासिल करने के लिए, ताज को हासिल करने के लिए, रूहानी बरकत को हासिल करने के लिए, रूहानी चीजों को हासिल करने के लिए, यीशु मसीह की तवज्जो को हासिल करने के लिए मुझे और आपको उसकी तवज्जो जरूरी है। वो तवज्जो उसकी तवज्जो आपकी तरफ ना होगी तो आप थके से महसूस होंगे, आप लागत से महसूस होंगे, कमजोर से महसूस होंगे। जो ही आप देखें ना, कभी आप आते हैं, खुदा चर्च में आते हैं, कई दफा कई लोग वही देते हैं कि जी मैं थके होया सा, थकी हुई है, सिर पीड़ हो गया सी, तो लेकिन जो ही प्रोसेस हो रही थी, दुआएं हो रही थी, कलाम सुन रहे थे, वो सारी दर्द चली गई, वो थकावट चली गई। क्यों? क्योंकि खुदा की हजूरी थी। तो जैसे खुदा की हजूरी में आप आते हैं, उसके उस जलाल में आते हैं, तो वो आपको जलाल बख्शता है और आपको जलाली बनाता है और आपके सारी थकान को भी दूर कर देता है। इस लिहाज से पौलुस रसूल कहते हैं, ऐ भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं। कह रहे कि मुझे ये गुमान नहीं कि मैंने वो उस मकसद को मैंने पकड़ लिया है, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई हैं, अब 2021 में जो चीजें पीछे रह गई हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं करना, उनकी तरफ तवज्जो नहीं करनी, उनकी तरफ वो आपने माइल नहीं होना, बल्कि उन चीजों की तरफ आपने माइल होना है, उन चीजों को हासिल करना है जो आपने खुदा के आगे रखी है, जो खुदा आपसे चाहता है। खुदा आपसे चाहता है कि ये 2022 में आप कुलियत तौर पर, मुकम्मल तौर पर अपने आप को सरेंडर कर दें, उसकी ताबेदारी में आ जाए, उसकी हजूरी में आ जाए, उसके जलाल के नीचे आ जाए, उसके कलाम के नीचे आ जाए, उसके कलाम को अपने दिल की तख्ती पर लिख लें और उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढालें। हालेलुया। अब एक और हमें हवाला मिलता है लूका तबीब के मार्फत लिखी गई इंजील, उसके आखिर 23वें बाब की उसके तकरीबन 43वीं आयत है। तो वहां पर जब एक डाकू, 2 डाकू थे, एक मुलामत कर रहा था, एक डाकू जो था वो उसे एहसास हुआ है कि यीशु मसीह ही निजात देता है, वही खुदा का बेटा है। एक का फोकस हट गया कि उसने कहा मैं तो बस गया, लेकिन दूसरे का फोकस यीशु मसीह पर ध्यान था। उसने सुना था कि वो मुर्दों को जिंदा करता है, उसने सुना था कि वो अंधों की आंखें खोलता है, उसने सुना था कि वो लकड़ों को चलाता है, उसने सुना था कि बहनों को कान देता है, उसने सुना था कि गूंगों को वो जुबान दे देता है, और उसने सुना था, देखा भी होगा कि वो भूखों को खाना भी खिला देता है, मायूस लोगों को जिंदगी भी बख्श देता है। इसलिए उसने सलीब पर अपना फोकस हटाया नहीं, यीशु पर अपने नजरें नहीं हटाई, बल्कि उसने कहा यीशु जब तू अपनी बादशाह में जाए तो मुझे जरूर याद रखना। तो यीशु मसीह ने उसकी तवज्जो हासिल की, यीशु मसीह ने भी कहा और उस शख्स ने भी यीशु की तवज्जो को हासिल किया। वो कैसे? यीशु ने कहा मैं तुझसे सच कहता हूं, जो आप कहेंगे, जो आप मकसद खुदा के आगे रखेंगे इस साल में, तो लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है कि यीशु ने कहा मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ। जो उसने फोकस रखा यीशु मसीह पर को तका, देखा कि मुझे ये जिंदगी दे सकता है, इसलिए उसने क्लेम किया। मकसद क्या था? जिंदगी को हासिल करना। जब तू अपनी बादशाह में जाए तो मुझे जरूर याद करना। तो यीशु ने कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि आने वाले वक्त में नहीं, बल्कि आज ही इसी वक्त तू मेरे साथ खुदा की बादशाह में दाखिल होगा। हालेलुया। तो जो मकसद आप खुदा यीशु मसीह को पर फोकस करते हुए, उसको तकते हुए जो खुदा के हुजूर रखेंगे, वो फौरन से पहले हल हो जाएगा, वो खुदा जवाब दे देगा। इसलिए पौलुस कहता है
तो मुझे ये गुमान नहीं है कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ, यानी कि अगलियां चीज़ों में मैं फड़न की कोशिश, पिछे जो रह गया उन्होंने मैं छड़ देता, लेकिन अगली चीजों को की तरफ बढ़ा हुआ, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं। पीछे जो हो गया, लेकिन अब जो मुझे निशान की तरफ जो दौड़ना है, जो मुझे दौड़ दरपेश है, वो ये है कि मैं उस नाम को हासिल करूं, उस जिंदगी के ताज को हासिल करूं, उस खुदा के फेवर को हासिल करूं, ताकि उसका जलाल मेरी जिंदगी में कसरत से काम करे। हालेलुया। आइए एक और हवाला और आखिरी हवाला देखिए, यशवा की किताब, यशवा की किताब उसका 6वां बाब, छठे बाब की 5वीं, 10वीं से 11वीं और 20वीं आयत में हम बात करें। यशवा 6वां बाब 5वीं आयत से हम देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है, और यूं होगा कि जब वो मेंढे के सींग को जोर से फूंके और तुम नरसिंगे की आवाज सुनो, तो सब लोग नहायत जोर से ललकारें, तब शहर की दीवार बिल्कुल गिर जाएगी और लोग अपने अपने सामने सीधे चढ़ जाएं। अब उनको ये मकसद सौंपा जा रहा है, एक काम सौंपा जा रहा है, उनकी जिंदगी को एक काम दिया जा रहा है उनकी जिंदगी में, तो वो ये काम है कि तूने यरू की दीवारों को तोड़ना है। जो खुदा यीशु मसीह ने मुझे भी और आपको भी ये फोकस दिया है, ये काम दिया है कि बस मैंने तुम्हें अपना इख्तियार दिया है कि तुम जाओ और सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, दौड़ तुम्हें किसी चीज से जरूर नहीं पहुंचेगा। सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत का गालिब हो, तुम्हें किसी चीज से जरूर नहीं पहुंचेगा। एक और मकसद जो खुदा ने मुझे और आपको सौंपा है कि तुम तमाम दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी करो और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, और जो कुछ मैंने तुम्हें तालीम दी है उन पर अमल करो। देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। तो यहां पर उस फौज को, उस लश्कर को ये काम सौंपा जा रहा है कि जब मेंढे के सींग को जोर से फूंकेंगे तो नरसिंगे की आवाज सुनो, तो सब लोग नहायत जोर से ललकारना है। तो जब आपका मकसद आपने खुदा के हुजूर रखा हुआ है, तो आपने बुलंद दस्ते दुआ बुलंद करनी है, अपने हाथों को बुलंद करके दुआ करनी है कि खुदा ये काम मेरा, जो मैं किसी और पर निगाह नहीं लगाता, किसी और पर मेरा ध्यान नहीं है, किसी और पर तवक्कुल नहीं है, किसी और पर मेरा फोकस नहीं है, मैंने जो सुना है कि ईमान के कामल करने वाले बानी यीशु को तके, मैं तुझे तकता हूँ, तुझे तकती हूँ, तुझ पर भरोसा करती हूँ और करता हूँ कि तूने ये काम करना है। उनको ये मकसद दिया गया है, वो जोर से ललकारे, आपने जोर से दुआ करनी है ताकि आपकी आवाज आलमे वाला तक पहुंच जाए। हालेलुया। और अगले का तब शहर की दीवार बिल्कुल गिर जाएगी। आपकी उस दुआ के वसीला से जो कुछ आप खुदा के हुजूर रख रहे हैं, खुदा आपकी दुआ का जवाब दे देगा। अगर बदरूहों ने, इब्लीस ने वो आपकी दुआओं को रोका हुआ था, वो खुदा आपकी उस जो है दुआ के वसीला से उस दीवार को गिरा देगा और खुदा आपको आपके मकसद में कामयाबी दे देगा। हालेलुया। आगे देखते हैं 10वीं से 11वीं आयत लिखा हुआ है इसमें, और यशवा ने लोगों को ये हुक्म दिया कि ना तो तुम ललकारना और ना तुम्हारी आवाज सुनाई दे और ना तुम्हारे मुंह से कोई बात निकले, जब मैं तुमको ललकारने को कहूं तब तुम ललकारना। खुदा
یہاں پہ اپنے بندہ کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بھی سکھا رہا ہوں، اس لشکر کو بھی سکھا رہا ہے کہ جو چیز آپ کو سکھائی جا رہی ہے وہ چیز آپ نے کرنی ہے۔